Hello students, and let's continue with our topic of biological classification. So previously we have seen the criteria necessary to classify the five kingdoms. We have seen into four basic properties, that is the cell type, cell organization, then you have the mode of nutrition and the mode of reproduction. Okay, so based on that the five kingdom classification was introduced by R.H. Whitaker. So we'll begin with the first kingdom today, that is kingdom Monera. Okay, now let us see what kind of organisms are these. The kingdom mainly comprises of bacteria. ठीक है, तो ये जो kingdom होता है, kingdom Monera generally consists of bacteria. Now what are bacteria? Bacteria are actually unicellular. Okay, unicellular prokaryotic organisms. Now this is very important, you need to remember. Okay, what kind of organisms are they? They are unicellular prokaryotic organisms, kingdom Monera. They mainly comprise of bacteria. इसमें ज्यादातर बैक्टीरिया ही होते हैं. आप दुनिया में जितना भी बैक्टीरिया देख रहे हैं सब इसी किंगडम को बिलोंग करेंगे. बैक्टीरिया do not belong to any other kingdom. ठीक है? So this is called as the kingdom Monera, to which all the bacteria belong. These organisms live in extreme habitats like hot water springs, deserts, deep ocean. So आप जो बैक्टीरिया से आप लोग भी जानते होंगे कि ये बहुत डिफरेंट प्लेसेस में रहते हैं. आप ले लीजिए फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन टिल द बॉटम ऑफ द सी to the dry deserts to the hot water spring. Hot water springs मतलब there are certain places in the world where you'll find कि the water which comes out from the soil is hot. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं. जैसे आपका एक बहुत फेमस हॉट वाटर स्प्रिंग या फिर गीजर है येलोस्टोन नेशनल पार्क इन यूएसए. इंडिया में भी टुवर्ड्स द हिमालयन रेंज, अपर हिमालयस, आपके बहुत सारे ऐसे हॉट वाटर स्प्रिंग्स मिल जाएंगे. तो ये जो क्लाइमेटिक का ये जो कंडीशन होता है आपका हॉट वाटर स्प्रिंग का या फिर डीप ओशंस जहाँ पे सनलाइट भी नहीं पहुंचता, तो वो बहुत हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस है. So there also you'll find these bacteria. They are very commonly found. You'll find this bacteria in the atmosphere. You'll find this bacteria in your food. You'll find this bacteria. In fact, inside our body there are millions of bacteria. ठीक है? ये जो बैक्टीरिया है बहुत डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स हैं and they live in very different kinds of places. Almost in every part of the world you will find bacteria. Okay? So some bacteria are autotrophic, either that is photoautotropic or they can be chemoautotropic. तो हम लोग जानते हैं कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो लोग कुछ बैक्टीरिया, आई एम नॉट सेइंग ऑल द बैक्टीरियाज, यू विल फाइंड कि सम ऑफ द बैक्टीरियाज आर ऑटोट्रोपिक, मतलब दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. वी यूजिंग ए वर्ड हियर ऑटोट्रोपिक, इसका मतलब होता है कि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं. और वो भी दो अलग अलग मोड्स. एक होता है फोटो ऑटोट्रोपिक, मींस दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द यूज ऑफ सनलाइट, जैसे आपके प्लांट्स और एल्गी करते हैं थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस. Or they can prepare their own food from different chemical substances. Okay, तो ये जो chemical substance है उसको break down करके भी वो अपना energy produce कर सकते हैं. So there are two modes of autotrophic nutrition by the bacteria. One is photoautotropic, the other one is chemoautotropic. Okay, now we'll see just an example here. This is cyanobacteria. तो ये आपका जो डायग्राम है अभी पेज पे डिस्प्ले हो रहा है, दैट इज साइनोबैक्टीरिया. एंड एज यू कैन सी दे आर ग्रीन इन कलर. ये छोटे छोटे जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ये सब बैक्टीरिया ही हैं. साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं वो नेचर में. दे कंटेन क्लोरोफिल, जैसे आपके प्लांट में या फिर आपके एल्गी में जैसे क्लोरोफिल होता है, सिमिलरली इनमें भी क्लोरोफिल होता है. सो दो दे आर बैक्टीरिया दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रोपिक. ज्यादातर बैक्टीरिया हेट्रोट्रोपिक होते हैं, मतलब दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे विल डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड. ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब ये जो हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया है ये भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. ओके, you'll find that some of the bacteria are you can say parasitic as well. कुछ तो parasitic भी होते हैं, मतलब they will remain as parasites. Okay, ये जो heterotropic mode of nutrition है उसमें से एक है, parasitic हो सकते हैं. कभी कभी बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स भी होते हैं, मतलब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म में आपको बैक्टीरिया मिल जाएगा. यू माइट हैव ऑब्जर्व दिस कि अगर कोई मीट या फिर कोई भी फूड प्रोडक्ट आप लोग बाहर रख देते हैं कुछ टाइम के लिए, मे बी 1 day और 2 day,
आफ्टर दैट यू विल फाइंड कि वो खराब होने लगता है, उसमें से फाउल ऑर्डर निकलने लगता है. दैट इज बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरिया. सो द बैक्टीरिया दे हेल्प इन डिकम्पोजिशन एज वेल. ठीक है, कुछ कुछ बैक्टीरिया पैरासाइट की तरह रहते हैं. एक एग्जांपल ले लेते हैं उसका, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया. द एग्जांपल विल बी इश्चेरिशिया कोलाई, ई कोलाई. तो ये जो बैक्टीरिया है ये आपके इंटेस्टाइन में भी रहता है, पैरासाइट की तरह रहता है, बट जनरली इट इज नॉट हार्मफुल. Sometimes if it becomes virulent it can cause different kinds of digestive disorders, like it can cause amoebic dysentery. ये dysentery cause कर सकता है, या फिर you will find कि आपके digestive system में there can be certain disorders, okay, which can be caused by this bacteria. तो ये आपका एक heterotropic bacteria है which cannot prepare its own food. It will depend on the food given present in your body, or it will depend on food in other places, in other host cells, host organisms. तो ये parasitic भी होते हैं, कुछ कुछ decomposers भी होते हैं, right? So that is the heterotropic kind of bacteria. The bacteria are of different shapes and basically they are of 4 different shape. अगर हम लोग टोटल बैक्टीरिया देखें, ये 4 अलग अलग शेप के हो सकते हैं. क्या क्या हो सकते हैं? They can be either coccus, which is spherical. They can be either bacillus, which is rod shape, or they can be spirulum, which is spiral or spring like, or they can be vibrium or vibrio. कभी कभी इसको vibrio भी बोला जाता है. The structure is called as vibrio. You can write down this word vibrio. Vibrio मतलब कॉमा शेप, इनका शेप कॉमा शेप होता है. तो ये होता है बेसिक 4 स्ट्रक्चर्स ऑफ द बैक्टीरिया. इसको थोड़ा और डिटेल्स में देख लेते हैं. लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. They will find this in little more details. So here in this slide you will find there are different shapes of bacteria. अगर ये लोग spherical होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, that is called as coccus. Coccus is singular, cocci is plural. तो जहाँ पे आपको cocci दिख गया, remember this is plural form. Similarly bacillus is singular, bacilli is plural. Okay? तो ये आपके हो गए 4 बेसिक टाइप्स. एक होता है coccus, दूसरा bacillus, तीसरा spirulum और चौथा vibrio. These are the 4 basic structures of bacteria. But there are certain deviations. मतलब आप अगर एक स्पेसिफिक spherical बैक्टीरिया को देखते हैं तो इसको आप लोग कोकस बोलेंगे. But sometimes this bacteria might be present in the form of a pair. Okay, तो ये जो कोकस बैक्टीरिया होते हैं वो पेयर की तरह हो सकते हैं, like this. अगर पेयर में होते हैं तो उनको बोला जाता है डिप्लोकोकस. डिप्लो, the word di means 2. तो यहाँ पे अगर 2 एक साथ रहते हैं डिप्लो हो गया. अगर 4 रहते हैं, 4 ऐसे एक यूनिट बना के रहते हैं. दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया, स्पेसिफिकली कोकस बैक्टीरिया वेयर देयर आर 4 ऑफ देम, उसको बोला जाता है टेट्राड. ठीक है. बिसाइड्स दैट कभी कभी ये लोग चेन के फॉर्म में रह जाते हैं. द कोकस कैन रिमेन इन द फॉर्म ऑफ ए चेन एज इट इज सीन हियर, राइट? दैट विल बी कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोकोकस. द वर्ड स्ट्रेप्टो मींस चेन लाइक. ठीक है. कभी कभी वो लोग कॉलोनी फॉर्म कर लेते हैं, लाइक दिस वन. दे विल रिमेन इन क्लस्टर्स, वो लोग ग्रुप में रहने लगते हैं, तब उनको बोला जाएगा स्टेफाइलोकोकस. स्टेफाइलो कॉलोनी लाइक, स्ट्रेप्टो चेन लाइक. और ये स्ट्रेप्टो स्टेफाइलो फॉर्मेशन आपको बेसिलस में भी मिल जाएगा. जनरली स्पाइरुलम और वाइब्रियो में ऐसे मल्टी सेलुलर यूनिट्स नहीं बनते हैं. मेनी बैक्टीरिया विल नॉट कंबाइन टुगेदर. जनरली वो लोग अलग अलग रहते हैं. लेकिन आपको कोकस और बेसिलस में ये दिखेगा, अगर 2 रहते हैं डिप्लोकोकस. ठीक है. एंड इफ देयर आर 4 टेट्राड बोला जाएगा. अगर वो लोग चेन की फॉर्म में रहते हैं, वन आफ्टर अनदर, वो लोग एक चेन जैसा फॉर्म कर लेते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस बोला जाएगा. और अगर वो लोग कॉलोनी फॉर्म कर लेते हैं, स्टेफाइलोकोकस बोला जाएगा. ठीक है. सो दीस आर द डिफरेंट फॉर्म्स. बिसाइड्स दैट फ्लैजेलेटेड रॉड शेप भी होता है. मतलब ये जो आपका बेसिलस होता है उसमें कभी कभी फ्लैजेला हो सकता है, द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स एज यू कैन सी अराउंड दिस. या फिर कभी कभी स्पोर फॉर्मिंग भी हो सकते हैं. दे कैन बी स्पोर फॉर्मिंग, मतलब दे कैन रिमेन इनएक्टिव फॉर ए वेरी वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम. Whenever favorable conditions arise, they can again come back to life and they can again reproduce, increase their number and carry out metabolism. तो वो लोग स्पोर की तरह रह सकते हैं. बैक्टीरियल कैन बी एज स्पोर. एग्जांपल हो गया आपका क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम. ओके. वाइब्रियो एज यू नो कॉमा शेप्ड होता है. ये इस तरह का होता है, थोड़ा थोड़ा बैंड होता है एज लाइक कॉमा. आप जैसे स्टेटमेंट्स में देते हैं, समवॉट लाइक दिस. ओके. ये कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है इसका. This one is vibrio. Okay.
Similarly, fourth one is the spirula. Spirula is plural, spirulum is singular. हम इससे पहले वाले स्लाइड में spirulum यूज किए थे वर्ड, that is singular. Spirula हो जाए तो plural होता है, ठीक है. Helicobacter is an example of spirula. और एक और होता है spirochetes. Spirochetes जो होते हैं वो पतले से लंबे रिबन लाइक होते हैं, which are little bit zigzag in pattern. Okay? तो ये भी है एक see these are little more detailed structures. आपके बुक में सिर्फ 4 ही दिया हुआ है, that is coccus, bacillus, the spirulum and the vibrio. These are some of the additional data. Okay, so this is about the shape of the bacteria, right? Now अगर हम लोग classification of bacteria में जाएं, we'll move on to the next slide. That is the classification of bacteria. ब्रॉडली हम लोग उसको दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. यहाँ पे मैं उसको थोड़ा डिटेल डिवीजन रिप्रेजेंट कर दिया हूँ. उसका दो ग्रुप होते हैं, एक होता है आर्की बैक्टीरिया और दूसरा होता है यू बैक्टीरिया. द आर्की बैक्टीरिया ग्रुप आर द प्रिमिटिव बैक्टीरिया. ओके, विल गो इनटू डिटेल्स ऑफ दिस बोथ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, बट ओवरऑल में अगर देखा जाए तो हम उसको दो बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. आर्की बैक्टीरिया, द प्रिमिटिव बैक्टीरिया, एंड यू बैक्टीरिया, द मॉडर्न बैक्टीरिया, द रिसेंट बैक्टीरिया. ठीक है, तो ये आर्की बैक्टीरिया जो है ये मिलियंस ऑफ ईयर्स हो गया, इनमें ज्यादा चेंजेस नहीं आया. दे हैव नॉट इवॉल्व्ड मच, दे आर एज दे वर मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक. व्हेयरएज ये जो यू बैक्टीरिया है ये लोग मॉडर्न बैक्टीरिया है. दिस मॉडर्न बैक्टीरिया they will possess certain modern characteristics which will not be seen in case of archibacteria. Besides that, एक group है cyanobacteria और finally the smallest living organism mycoplasma. तो इसको चार बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लेकिन आपके बुक के हिसाब से अगर हम लोग पढ़ें तो आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में डिवाइड किया है. साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा के बारे में थोड़ा ब्रीफली ही डिस्क्रिप्शन है उसका अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई कोर्स सिलेबस. ठीक है, लेकिन आर्की बैक्टीरिया अलग अलग हो सकते हैं. दे कैन बी हेलोफाइल्स, मतलब जो सलाइन वाटर या फिर सॉल्ट वाटर में रहते हैं. कुछ होते हैं थर्मो एसिडोफिल्स जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स में रहते हैं. कुछ होते हैं मिथेनोजेंस जो मार्शी एरियाज में रहते हैं, दलदल जैसे एरियाज में रहते हैं, और वो लोग मीथेन प्रोड्यूस करते हैं. दैट इज द रीजन मिथेनोजेंस बोला जाता है. अब ये जो यू बैक्टीरिया है ये दो टाइप के हो सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक. Now this both we have just briefly discussed in the previous slide. So this is about the classification of kingdom Monera. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे about the two basic types of bacteria, that is the Archaebacteria and the Eubacteria. Okay, thank you everyone.